Hello everyone. As you all know that in earlier videos we have completed the 10th class ICSC syllabus of history, civics, geography and class 9th also geography we have completed. So now it is the time for your board preparation. So this video will relate with the important questions only, important questions and answers of history civics for class 10th for board preparation, that is ICSC 2021. So these questions are taken from different sample papers, your question papers and books from different books. So according to my own experience, I have taken questions from history and civics. Earlier we have also uploaded the sample papers, solved sample papers of history civics. Two sample papers we have uploaded. One I have uploaded of geography. The next video, in the next video I'll upload the 20 20 1920 sorry 1920 question papers answer of geography also. So now in this video there are around 18 short questions of civics, 14 short questions of civics and around 15 questions, long questions from history civics. So I want to tell you that till now if you haven't prepared, अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन चालू नहीं करी है, तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अगर आप लर्न कर लें तो मेरे हिसाब से पेपर में 70% मार्क्स आपको ईजिली आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो के बेसिस पर इतने आपके आ सकते हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आ सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, in this first is about short questions civics that will be of 1 mark. These are the questions and the answers are also written with it. So these are the questions. Please note down these questions and answers also. Pause the video and write down the answers. After this, from question number 7 to question number 12, these are the questions and the answers. आई एम टेलिंग यू कि अभी तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपके 70% मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं हिस्ट्री सिविक्स में। नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी की अपलोड होगी जो कि सॉल्व पेपर होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर्स दिए जाएंगे। 1920 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर्स, और उसके बाद ज्योग्राफी की भी एक वीडियो ऐसी ही दोबारा अपलोड करी जाएगी जैसे हिस्ट्री सिविक्स की हो गई और ज्योग्राफी की। अगर आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं तो उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। Pause the videos and write down the questions and answers of these things. If you have any confusion in it, you can comment and I will give you the answers also of your confusion. So till here, these are the 1 mark questions of civics, 18 questions. Now coming to the short questions of history, which are having the weightage of 2 marks. From here, the question number 1, 2, 3, 4 are given over here. Pause the video and write down the question answers. Moving from question number 5, 6, 7, 8. These are the important questions. These all questions are based on your previous papers, different types of sample papers and books. I am repeating it. All the questions which I have seen, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है वो इसमें नहीं लिए गए हैं, जिनका आपको डायरेक्ट आंसर आता है इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अपना माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिए गए हैं। ये मान के चल रहा हूँ मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस लेते हुए कि आपको बेसिक आइडिया होगा, बेसिक आइडिया के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही इसमें इंक्लूड करे गए हैं।
Question number 10 is here. Question number 11 is here. The answers are also given over here. Question number 12. Coming to the question number 13. Answers of question number 12 and question number 13. Question number 15. Now till here the history civics short questions are completed. Now coming to the long questions of civics. Remember, in some questions which are short questions, there are few lengthy answers also like this. But these answers will cover many questions. Okay. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन से आपको 2 नंबर की ही आप पढ़ पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी ले पा रहे हैं, राइट। तो कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जिसमें किसी भी आंसर का बैकग्राउंड और उसके आगे की भी चीज़ें भी दी हुई होंगी, जिससे आगे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली लिख पाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ट्रीटी ऑफ वर्साइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उस आंसर में उसका ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्यों हुई, रीज़न उसके, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होने के बाद क्या हुआ, ये भी चीज़ें ली गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है तो भी आप लिख दोगे, रीजंस बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वो भी लिख दोगे, और व्हाट हैपेंड ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वो भी लिख दोगे। तो इस तरीके से आपके आंसर्स बनाए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर हो, कई सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर पाएँ, लर्न कर पाएँ, और साथ ही साथ आंसर्स और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ऊपर क्वेश्चन था कि वाई, व्हेन एंड वाई अवध वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डेलाउजी। तो इसमें ये लिख दिया कि अवध जो है एनेक्स करा गया था लॉर्ड डेलाउजी की ने करा था। और फिर उसके बाद जैसे लखनऊ पैक्ट का क्वेश्चन था नीचे, लखनऊ पैक्ट के साथ 1916 भी क्वेश्चन में था। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, अवध को किसने एनेक्स करा था, लॉर्ड डेलाउजी ने करा था। तो क्वेश्चन और आंसर को इस तरीके बताएगा कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे। इसलिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको अगर आपने ढंग से पढ़ ले तो ईजिली 70% तक आप गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। नाउ कमिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ सिविक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर द आंसर्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम हेयर द आंसर स्टार्ट्स and this is the answer. This is also in the answer. This is the whole answer of question number 3. After that, moving to question number 4, this is the question, qualification required for the appointment of judges of Supreme Court, and this is the whole answer. इन आंसर्स में कुछ आपको पॉइंट्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपने अपनी किताब में ना पढ़े हों, क्योंकि वो पॉइंट्स शायद आपकी किताब में नहीं थे, किसी और किताब में थे, या फिर वो कहीं और अवेलेबल थे जिसको यहाँ पर ऐड कर दिए गया, रिक्वायर्ड हैं वो पॉइंट्स। ठीक है। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू, इसका आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी ऊपर देखा है, इसको लॉन्ग में भी दे दिया थोड़ा सा। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? क्वेश्चन नंबर 6, this is about the Lok Sabha and how their people, members of Lok Sabha are elected. Now coming to question number 7, Parliament enjoy co-equal power in many spheres. देखिए, इस तरीके वर्ड जो होते हैं co-equal power, ये आपने नॉर्मली डायरेक्टली कहीं पर दिए हुए नहीं होते, आपने डायरेक्टली नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए co-equal पावर का मतलब क्या है। इसी वजह से क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपको आंसर पता होना। जाहिर सी बात है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई इक्वल पावर का मतलब क्या है, उन्होंने तो कई किताब में पढ़ा नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चों को पता भी होगा। तो इसका आंसर पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कोई इक्वल पावर का मतलब क्या है। तो बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे कि आप पार्लियामेंट के 2 हाउसेस की पावर बताइए जो एक जैसी होती हैं, कहाँ पर दोनों साथ में वर्क करते हैं, उन्होंने कोई इक्वल दे दिया। ठीक। This is also the part of question number 7's answer. Now coming to question number 8. This is the question and these are the answers. Coming to question number 9. Question number 9 is containing 3 parts. So A part answer is this. B part answer is this much.
इन दिस क्वालिफिकेशंस के साथ साथ हमने रिमूवल ऑफ जजेस भी दे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके इसमें दो आंसर्स कवर हो रहे हैं। कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द प्रोसीजर रिमूवल ऑफ जजेस, तो आप में ये पार्ट भी लिख कर रख सकते हैं सिर्फ। सी इज लोक अदालत, लोक अदालत किस तरीके से वर्क करता है, क्या रीजंस हैं, किस एक्ट के अंदर वो आया, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसका जो डिसीजन होता है लोक अदालत का, उसे क्या कहते हैं, उसे जजमेंट नहीं कहते हैं, उसे अवार्ड कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत अलग से आ गई। अगेन इन क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिस इज द क्वेश्चन, ए बी सी आर द थ्री पार्ट्स। नाउ द आंसर्स आर गिवन। ए इज here, from here to here. Coming to B, B is from here to here. Coming to answer number C, from here to here. Now question number 11. Question number 11 is this. Independence of judiciary related answer है ये क्वेश्चन है. This is the answer. Now coming to history's long questions. Question number 1 is this. Answer is this. आर्मी में क्या क्या चेंजेस आए थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ये वो क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है. अर्ली कांग्रेसमैन यानी अर्ली नेशनलिस्ट. असर्टिव नेशनलिस्ट. क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप थोड़ा ध्यान दें, वी हैव रिटन डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथड्स अडॉप्टेड बाय अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेटर्स, यानी अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेटर बात एक ही है, कुछ भी आ सकता है लिखकर. रेडिकल और असर्टिव नेशनलिस्ट ये भी लिखा आ सकता है, या फिर इसकी जगह एक्सट्रीमिस्ट भी आ सकता है, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेटर्स बात एक है, रेडिकल असर्टिव या फिर आपका ये एक्सट्रीमिस्ट भी बात एक है. तो इस तरीके से इनके मेथड्स ऑफ मॉडरेटर्स, मेथड्स ऑफ असर्टिव्स आ गए. यहाँ तक ये आंसर है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादातर सैम्पल पेपर्स में भी मिलेगा. आपके स्कूल में जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जिक्र होगा, दिया गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ज़्यादातर नॉन कॉपरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको तीनों ही आने चाहिए क्योंकि तीनों ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इस वजह से बताया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी का पहला इंडिया लेवल पे चला है वो मूवमेंट जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था. गांधी जी जब इंडिया लौट के आए थे तब, इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है. साथ ही साथ इसमें खिलाफत मूवमेंट और ये जलियांवाला बाग भी तभी हुआ था, तो इन सब चीज़ों को मिला के रॉबर्ट एक्ट वगैरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन जाता है. विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट भी देखिए, इसमें विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट भी दे दिया गया है कि इस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों करा गया था, चोरी चोर इंसिडेंट कैसे हुआ था, कब हुआ था, 22 पुलिसमैन मारे गए थे इस तारीख में, ये चीज़ें आ जाती हैं. अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें ये आंसर है. डिससेटिस्फेक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, राइज ऑफ फासिस्ट एंड नाजिम्स, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आ गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे. एक तो ये क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई, और इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद क्या हुआ. इसमें आ गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये आपका पूरा आंसर है. डिफीट ऑफ एक्साइज पावर्स हुई थी,
कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या डिफीट हुई उसमें, ये पोस्टम डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है, कौन सी तारीख में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूएन आ गया, यूएन की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, बिग थ्री कौन कौन से थे, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर, जो आपका यूएस और रशिया के बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में रही। नेक्स्ट आपका आ गया फिर ये चैप्टर आपका यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है कि वीटो पावर किसे कहते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के 3 फंक्शन क्या हैं। तो दिस इज़ द आंसर। कुछ आंसर्स इसमें काफ़ी लेंदी और कुछ आंसर शॉर्ट भी मिलेंगे। लेंदी वो इस वजह से क्योंकि उनके आगे पीछे बैकग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा है। इसी क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला, इसमें आपके कम से कम तो 3-4 आंसर छुपे हुए हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ, यूएन की फॉर्मेशन कैसे हुई, कोल्ड वॉर क्या है। इसमें 3 आंसर्स आ गए, राइट। नाउ गांधी स्कूल सोशल आइडियाज़ क्या क्या थे, ये आपके पास आंसर्स आ गए हैं। अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया गया था। बाकी ये 2 पॉइंट्स ये आ गए हैं। इसके बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके कोई से भी 3 प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं। ये हमने लिख दिए 3 principles are given over here. After that, in question number 9, there are 3 parts which is related to non-aligned movement, जवाहरलाल नेहरू वाला जो चलाया था इन्होंने। तो इसमें ए का आंसर ये आ गया, बी का आंसर ये आ गया, सी का आंसर ये आ गया। इसके बाद यूएन के जुडिशल ऑर्गन, जिसे आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें कितने कितने जजेस होते हैं, कैसे रिपीट करते हैं, क्या क्वारम है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या डिससेटिस्फेक्शन था, किस तरीके से, क्या क्या कॉज थे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है हमें। तो यहाँ से हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा है मिलिट्री कॉज। Economic causes are given over here. After that, political causes are given over here. यहाँ तक पॉलिटिकल कॉजेज आपके सारे आ गए। कमिंग टू दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। सो इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, गांधी इरविन पैक्ट, ये सब आ गया। सो आंसर 1 इज क्यों हुआ, गिवन ओवर हेयर इन दिस होल। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी का आंसर, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, फर्स्ट के बाद सेकंड हुई थी, फिर थर्ड, कांग्रेस का कब का पार्टिसिपेशन था उसमें, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आ गया। इन सबको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया, क्यों आया, कौन लेकर आया, माउंटबेटन्स प्लान में आया था, ये इस तारीख में पास हुआ था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, मेन प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। आफ्टर दैट, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कांग्रेस का पार्टीशन प्रपोजल जो था, एक्सेप्टेंस के क्या रीजंस थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट रीज़न ये था सिविल वॉर हो जाती, कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाह रही थी कंट्री में। एक बड़ी कंट्री से अच्छा था कि एक छोटी हो पर यूनिफाइड स्मॉलर कंट्री ज़्यादा बेटर थी। इंटरिम गवर्नमेंट का फेलियर रहा था। यहाँ तक इसका आंसर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें हमें एग्रेसिव नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी एंड पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट के बारे में बताना है। ये सब आ गया। हिटलर और मुसलिनी के बारे में आ गया। रिमेंबर, इसमें
ऑल क्वेश्चंस अभी कवर नहीं करे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, वो अपलोड हो जाएंगे इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के नाम से, ठीक है। इसके अलावा अभी जो इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो अपलोड होगी, ज्योग्राफी का पेपर के आंसर्स, कौन से वाले के, 1920 वाले के, 1920 का जो पेपर रहा था उसके आंसर्स भी अभी अपलोड होंगे। और ज्योग्राफी की ऐसी ही जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे, वो भी अपलोड करी जाएगी ज्योग्राफी की, ठीक है। इसके अलावा ये सब कुछ अपलोड होने के बाद ज्योग्राफी के मैप्स से रिलेटेड की मार्किंग कैसी करनी चाहिए, और हिस्ट्री सिविक्स के पिक्चर स्टडी से रिलेटेड ये वीडियोस हमारी और रह जाएंगी। सो इन माय व्यू, राइट डाउन दीज क्वेश्चंस, आंसर, लर्न इट, अच्छी तरीके से इनको पढ़िए। बोर्ड में 70% आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जिस बच्चे को टॉप करना है वो सिर्फ इस वीडियो पे नहीं रह सकता, उसे सारी ही चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कुछ भी आ सकता है। थैंक यू।